آج کا جمعہ تو مبارک میں اور آپ تذکرہ کریں کہ مارکہ بدر، مارکہ حق و باطل، مارکہ صدق و کذب۔ 17ویں روزے کو یہ وہ مارکہ تھا جو حق اور باطل کے درمیان تھا، مسلمان اور کافر کے درمیان تھا، سچ اور جھوٹ کے درمیان تھا۔ یہ ایسا مارکہ تھا جس نے کل کائنات کے اندر مسلمانوں کی شانوں کو دوبالا کر دیا۔ یہ وہ مارکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ جا چکے تھے، تو مدینہ المنورہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا جہاد کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو مجلس میں مسجد میں طلب فرمایا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی آواز مسجد نبوی کے گرد و نواح میں گونجی تو مسجد نبوی غازیوں اور نمازیوں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے۔ وہ لوگ بدر کی وادی کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اب تم لوگوں نے بتانا ہے کہ مدینے میں رہ کے دفاع کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یا باہر نکل کے دفاع کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم باہر نکل کے دفاع کریں گے۔ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر کو بدر اس وجہ سے کہتے ہیں میدان بدر کو کہ اس کے اندر، اس میدان کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا جو پانی تھا وہ ہر وقت بھرا ہوا رہتا تھا۔ بدر کا جو معنی ہے بھرا ہوا ہونا۔ یہ بدر کا چاند جو کہا جاتا ہے، یہ 14 جب چاند کو 14 دن ہو جائے تو اس چاند کو کہا جاتا ہے کہ بدر کا چاند۔ اسے کیوں بدر کہا جاتا ہے کہ 14 دن چاند بھر جاتا ہے، اس کے اندر نورانیت پوری مکمل ہو جاتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ بدر۔ قمر بھی چاند کا نام ہے، بدر بھی چاند کا نام ہے، لیکن قمر سے بدر تب بنتا ہے جب نورانیت دوبارہ ہو جائے، تب قمر بدر بن جاتا ہے۔ یہ میدان کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی بھرا ہوا ہوتا تھا، تو اس کنویں کو بدر کہا جاتا تھا۔ اس کنویں کی نسبت کی وجہ سے اس پورے میدان کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باہر نکل کے دفاع کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو بتاؤ کون ہے جو محمد کا ساتھ دے گا اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرا مال بھی آپ پہ قربان ہے، چلو نکلے دفاع کرتے ہیں۔ وہ شخص ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھاپے میں بھی پھیلا ہے، وہ جوانی میں بھی پھیلا ہے، وہ غاروں میں بھی پھیلا ہے، میزاروں میں بھی پھیلا ہے، وہ حضر میں بھی پھیلا ہے، وہ قبر میں بھی پھیلا ہے، وہ پیکار میں بھی پھیلا ہے، وہ میزار میں بھی پھیلا ہے، وہ غار میں بھی پھیلا ہے، وہ میلاد میں بھی پھیلا ہے، وہ معراج میں بھی پھیلا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جسے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اول نمبر عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، چہرے پہ چمک دوبارہ آئی، فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ اور کون ہے جو محمد کا ساتھ دے گا؟ فاروق اعظم، قیس دمادم، مالک ملحم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار مکہ کا کہہ رہے ہیں؟ عمر کا ایمان یہ کہتا ہے کفار مکہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، آپ جنات سے جہاد کا حکم دیں گے، ہم جہاد کے قلعوں کو اکھیڑ کے رکھ دیں گے۔ قریش مکہ یہ کیا چیز ہے؟ قریش مکہ تو کیا چیز ہے؟ دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینائے باطل میں گڑ جائیں۔ قریش مکہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھے نمبر لے گئے ہیں، شیطان آگے نکل گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لشکر کو تیار کرنا ہے اور میدان بدر میں جا کے کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے یا رسول اللہ آپ کو لشکر کو تیار کرنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ
अली को तनहा भेज दे, मैं मुकाबला करके आऊंगा। मदद के वास्ते अगर है गले का दार मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है किसी को दे वो लश्कर की। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही अली है कि जब ईमान लेके आए तो कुफार की मजलिस लगी थी और किसी ने आगे कहा कि अबू बकर अली ईमान ले आया है। उन्होंने कहा कि अली क्या चीज है, अभी 8 साल का बच्चा है, उसने क्या कर लेना है। लेकिन तकदीर मुस्कुरा रही थी कि ये 8 साल का बच्चा क्या क्या करेगा। ये 8 साल का बच्चा कभी खंदक के मैदान में अमर इब्न बुद जो हजारों से पार था, एक बार से उसे हलाक कर देगा। ये 8 साल का बच्चा जब दाई नबूवत के साथ मुकाबला करेगा तो पूरे ढेर के नीचे से लाश निकालेगा और कहेगा कि मेरे नबी का फरमान था कि एक दूल्हा और लंगड़ा खड़ा होगा, वो नबूवत का दावा करेगा और मेरा अली उसे हलाक करेगा। आपने एक बहुत देर लगा था लाशों का, उस लाशों के नीचे से उस दूल्हे की लाश को निकाल के दूर फेंका और कहा कि वो देखो मेरे मुस्तफा का फरमान सच हो चुका है। ये 8 साल का बच्चा क्या है। कभी 40 ऊंट खैबर का वो दरवाजा जिसे रस्सियां बांध के 40 ऊंट जोर लगाते थे और उसे बंद करते थे और खोलते थे, 4 उंगलियों से उठा के फेंकने वाला वो अली शेर खुदा है। मिलने के लिए बंदा आया कि कहने लगा कि मुझे अली से मिलना है। आप सूखे टुकड़े खा रहे थे रोटी के, कहा कि अली से मिलना है। आपने कहा बताओ क्या बात है। कहा कि आपसे नहीं मिलना, अली से मिलना है। फरमाया कि मैं ही अली हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ। कहा कि अली तो वो है जिसने खैबर के दरवाजे को उठाया एक हाथ से। आपने फरमाया मैंने उठाया। कहा सूखे टुकड़े खाने से कोई खैबर के दरवाजे नहीं उठाते, किस कुव्वत से आपने उठाया है। फरमाया जिस्मानी कुव्वत से खैबर के दरवाजे नहीं उठाए जाते, ईमानी कुव्वत से खैबर के दरवाजे उठाए जाते हैं। जिस्म की कुव्वत से नहीं था उठाया, मैंने ईमान की कुव्वत से उठाया था। हर किसी सहाबी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसकी मोहब्बत ईमान का कुल है, कुल ईमान है। लेकिन जब अमर इब्न बुद के मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके खड़े हुए तो फरमाया कुल कुफर के सामने कुल ईमान खड़ा है। कुल कुफर के सामने आज कुल ईमान खड़ा है। तो ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान की इस कदर बरतरी अता फरमाई थी। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम अभी भी देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई और खड़े हो, तो जो हिजरत करके आए हैं मुहाजिरीन में से अब तक वही खड़े हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आप चाहते हैं कि इंसार को देखें, अंसार सहाबा में से कौन खड़ा होता है। सहाबा की तो उसमें एक मुहाजिरीन और एक अंसारी। अंसारी वो सहाबा थे जो पहले से ही मदीने में रहते थे, और मुहाजिरीन वो थे जो मक्के से हिजरत करके आके मदीने में आबाद हुए थे और अंसारियों के भाई बने थे। जो रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके आए थे पहले वो खड़े हो रहे थे, फिर अंसारियों में से हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की तैयारी करने की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको हुक्म दे तो हम मौजदार समुद्र के अंदर अपने घोड़ों को दौड़ा के रख देंगे। आप तो मैदानों के अंदर घोड़े दौड़ाने की बात कर रहे हैं, हम मौजदार दरियाओं के अंदर अपने घोड़ों को दौड़ा के रख देंगे। उठे फिर हज़रत मिक़दाद, अर्ज़ की ए हादी गोरा, अता की है जो आपने हमको दौलत ईमान, इरादा है कि नेमत का बदल कुछ तो अदा कर दे, अगर कुछ हो सके तो आप पर ये जान फिदा कर दे। या रसूलुल्लाह एक ही जान है और वो जान भी आप पे फिदा कर देते हैं। वो हज़रत अब्दुल्ला थे कि जब मुसलमा ने टुकड़े किए तो रोने लगे। जब कहा कि फैसले से जाके आदमी ये मुझे नबी मानने वाला नहीं है, तो जब आग के करीब आया कि बस ये जिस्म बचे, ये साथ, ये जिस्म, सीना, ये पेट और ये चीज बची है, बाकी राने, टांगे, पाँव, हाथ, बाजू, कंधे, हर चीज कटी हुई है। और ये चीज उठा के कहा मुसलमान ने जब उसे फेंक दी, मेरी नबूवत की करार निकाला। आग के करीब आए रो पड़े, बंदन का के डर गया, वापस लेके जाते शायद अब मान जाएगा। जब वापस लेके जाया गया ये जिस्म, तो मुसलमान कहने लगा कि मैं नहीं मान जाते ना, चल पढ़ मेरा कलमा। तो कलमा तो नहीं पढ़ूंगा, कलमा जिसका पढ़ा है उसी का पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ये रोना कैसे है, डरा क्यों? ये डरने के आंसू नहीं है,
مجھے فین تو آ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک جان عطا کی ہے، ہزار کرتا میں ہر بار اس دباوے کو جان ایک ہے میرے پاس، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہزاروں ہوتی میں بار بار مرتا ہوتا، قتل ہوتا، شہید ہوتا، پھر مجھے خدا زندہ کرتا، پھر مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوتا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ساری باتیں سنی تو بارگاہ نبوت کے اندر دو بھائی حضرت معاذ اور حضرت معوذ، محبت بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کی کہ دونوں بچے ہیں، گھر جا کے ماں سے پوچھ کے آتے ہیں اور آ کے بارگاہ نبوت میں اپنا نام بھی دے دیتے ہیں۔ گھر گئے ماں کے پاس، دیکھا کہ ماں پہلے سے رو رہی ہے، عرض کی اما جان رونے کی وجہ، ماں کہنے لگی بیٹا سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو، نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا باپ ہے، میرے تم دو چھوٹے بچے ہو، کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، شوہر ہوتا یا باپ ہوتا، میں اسے بھی جہاد میں بھیجتی اور میرا نام بھی کسی شہید کے ساتھ اس وقت میں آ جاتا کہ شہید کی بیٹی ہے، یہ شہید کی بہن ہے، یہ شہید کی بیوی ہے۔ عرض کی اما جان اگر یہ سب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ان بچوں کے جسم کے اندر بھی جان ہے، یہ جان بھی جب شہید ہوگی تو شہید بچوں کی ماں کہلاؤگی، ہمیں جانے کی اجازت دیں؟ کہا نہیں تم لوگ نہیں جا سکتے، ابھی بچے ہو۔ کہا نہیں ہمارے ہم نے جانا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن جس کے پاس تم جا رہے ہو وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں جانے نہیں دینا۔ عرض کی اما جان آپ مان دیں انہیں جا کے ہم بنا لیں گے۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا تجھے اجازت ہے۔ بچے آگے بارگاہ نبوت میں، یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی بچے ہو، ابھی تو تم لوگوں کا قد بھی پورا نہیں ہوا، تو بڑا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا قد پورا ہے، چھوٹا کھڑا ہوا تھا پھر میرا بھی پورا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا چھوٹا ہے، اپنے پنجوں کو یوں اٹھایا، پیچھے پنڈلی کو ایڑی کو اٹھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھو میں بڑا، فرمایا نہیں تم ابھی بھی چھوٹے ہو۔ یا رسول اللہ بڑے بھائی کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ لشکر کے اندر قدوں کو نہیں دیکھا جاتا، مہارت کو دیکھا جاتا ہے، مجھے قبول کیجئے یا میری کشتی کرایا کہ میں اپنے بھائی کو گرا دوں تو مجھے قبول کر لیں گے؟ کہا بیٹا میں کشتی کرنے کا ٹائم نہیں، نکلنے کا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ کا سلام لے کے آیا ہوں اور آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ان بچوں کی کشتی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لائے کے میدان میں چلو کرو کشتی، کشتی ہو رہی ہے، بڑے نے چھوٹے کو نیچے گرایا اور خود اوپر بیٹھ گیا۔ چھوٹے نے کہا کہ بھائی جان سرکار کی زبان سے ایک مرتبہ نکل گئے کہ تم جا رہے ہو تو بس تم جا رہے ہو، یہ بات واپسی نہیں ہو سکتی، اگر تم ہار بھی جاؤ تو تم نے جانا ہے، آپ نیچے ہو جائے مجھے اوپر کر دیں میں بھی قبول ہو جاؤں گا، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ وہ بھائی تھے جو چھوٹوں میں شفقت کرنے والے تھے، جو گرے ہوں کو اٹھانے والے تھے، اور ایک کام ہے وہ بڑے ہو کے چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ہم چھوٹے ہو کے بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہونا تو دور کی بات، والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ بدر کی تفصیل ہے، سنانے کی نہیں، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ صرف سن کے ایمان کو تازہ کر کے اس ایمان کو برقرار رکھا کرو۔ یہ ایمان وہ نہیں ہے، یہ مثل غذا نہیں کہ جو ایک دن کے بعد خراب ہو جائے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ وہ سمندر ہے کہ اس سمندر کے اندر جتنا تم ڈوبو گے تمہیں اتنی ہی گہرائی ملے گی اور اتنا تمہیں ذوق حاصل مل ہوگا۔ لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، جتنے تم گہرے ڈوبو گے تمہیں اتنا ذوق آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو قبول فرمایا، کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ میدان بدر، یہ میدان بدر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، جس معرکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اور خود بھی شرکت اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی میدان بدر کے اندر۔ انتم اذلہ، یہاں اذلہ کا معنی کرتے ہیں مفسرین، حالانکہ تم لوگ ذلت میں تھے، تم ذلیل تھے۔ یہ وہ مفسرین ہیں جو خود ذلیل ہیں، جو ذلت کا معنی اذلہ کا معنی ذلت کرتے ہیں، یہ ذلیل۔ جو جمیل مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذلہ کا معنی ذلیل نہیں ہے، یہاں اذلہ کا معنی تم لوگ تھوڑے تھے،
बारगाह नबूवत के अंदर एक जासूस को पकड़ के पेश किया गया, आपने फरमाया बताओ क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भी आया, उतबा भी आया, शेबा भी आया, वलीद भी आया, ये सारे मक्के के सरदार आए हैं, 1000 का लश्कर है, हर बंदे के पास घोड़ा है, हर बंदे का तलवार है, हर बंदे के पास जीरा है, हर बंदा अपनी पूरी कमान के साथ खुराक के साथ आया और तुम लोगों को मिटाने के लिए आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया क्या मेरे सहाबा, मक्के ने अपने सारे जिगर के टुकड़े निकाल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं और मक्का तुमसे कह रहा है कि इन सबको हलाक कर दिया कि तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े बन जाओ। सुभान अल्लाह। उसने अपने सारे जिगर के टुकड़े निकाल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं। और मुसलमानों की क्या हालत थी, 313 भी नहीं थे, 308 थे। एक सहाबी जो जाते वक्त शहीद हो गए मेरा सफर के अंदर, एक के टांग टूट गए, एक को रसूलुल्लाह ने रवाना किया है उस्मान को, आपने खुद मदीने में ठहराया। ये 308 थे, 313 इस वजह से कहा जाता है कि जो शामिल ना हो सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार है कि आपने उन सहाबा को भी बदर के सहाबा में शुमार किया है। फरमाया कि तुम लोग बेशक शुमार नहीं हुए, मैं मोहम्मद तुम लोगों को ये मैं बरकत देता हूँ, ये रहमत देता हूँ, ये सवाब देता हूँ कि जो सवाब बदर के अंदर जाके बदर वालों को मिला है, तुम लोग मेरी इताअत की वजह से मदीने में थे, तुम लोगों को घर बैठे तो सवाब मिल गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। 313 में से 7 घोड़े थे, चंद ऊंट थे, लकड़ी की सोटियां पकड़ी थी, जिहाद करने निकले थे। 2 घोड़े, 6 जीरा, 8 शमशीरें बदलने आए थे ये लोग इस्लाम की तकदीरें। ये था इनके पास साजो सामान, और बदर के अंदर ये इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए निकले थे। बदली तकदीर ज़माने दी एक पल विच 313 में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर का मैदान तक के आए, कुफार पहले से आगे खड़े हुए बदर के मैदान में। उन्होंने आके जो मट्टी वाली जगह थी उसको मान लिया, क्योंकि रेतली जगह पे तमस ज्यादा होती है ना, जो मिट्टी वाली जगह पे जाके खड़े होते हैं मुसलमान, आके रेतली वाली जगह पे खड़े होंगे, जगह नरम है, वो गिरेंगे पटकेंगे, बहुत ही उनका लश्कर कमजोर हो जाएगा, हम मट्टी की चट्टान पे खड़े होंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की रात में दुआ, ये वो दुआ है जिसने जमीन व आसमान फर्श व अर्श को हिला के रख दिया। ये वो दुआ है जिसने मलाइका के सीनों को चीर के रख दिया। ये वो दुआ है जिसने अल्लाह ताला की अर्श की जानिब को हिला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फरमाते हैं कि आपने अतिया फरमाते हैं आपने यूं अपने हाथों को उठाया, इस कदर हाथों को बुलंद करके दुआ की कि आपके बगलों की सफेदी ज़ाहिर होने लगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या मांगी? अर्ज़ की या अल्लाह ताला, मैं तेरी बारगाह में ये दुआ नहीं करता कि तो हमें फतह अता फरमा और शिकस्त दे दे, हम ये नहीं करते हमें कामयाबी अता फरमा और हमें जिल्लत दे दे, हम ये दुआ नहीं करते कि मेरे लश्कर की सलामती फरमा और हमें तू कुव्वत अता कर दे। या अल्लाह मैं तुझसे एक ही दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल असाबतु लम तुअबद फिल अर्दि अबदा, मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगता, मैं आज के बाद मांगूंगा, लेकिन तुझे इतना बता रहा हूं, आज अगर ये लश्कर हलाक हो गया तो क़यामत तक तेरी इबादत भी कोई नहीं करेगा। तुझे भी खुदा किसी ने नहीं मांगना, मैं जितनी जगह पूंजी थी मैं लेके मैदान बदर के अंदर आ गया हूं, आगे तेरा काम है, तू जो करना है जाकर कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसुओं से आपकी दाढ़ी तंग हो गई। कुल जिंदगी का सरमाया लेके बदर के मैदान में आए बैठे हैं, तो बता क्या करें? अल्लाह का हुक्म था आ गए, या अल्लाह अब तुमने ही करना है जो करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे पीछे से कलावा डाला, जफ्फी डाली, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुकल्लाह जा रसूलुल्लाह जा रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह बस कीजिए, काफी हो गया काफी हो गया। वो देखिए अल्लाह की मदद आ गई, देखिए अल्लाह की मदद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नबी जो उठ के आ गया मुसल्ले से, महफूज हो गया ये लश्कर शैतानों के हल्ले से। ये वो लश्कर के जो लश्कर सारी दुनिया से निराला था, क्योंकि इस लश्कर का सिपा सलार एक काली कमली वाला था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में जब इब्तिदा हुई तो
और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मार आई तो मैंने कभी नहीं देखा कि बदर के मैदान में एक ऐसी हवा चली मिसला मार आई तो मिसला मैंने कभी ऐसी हवा न देखी। दोबारा एक हवा चली, मैंने कभी ऐसी हवा न देखी। दोबारा हवा चली, 3 मरतबा हवा आई, मैंने ऐसी हवा न देखी। मैं बारगाह नबूवत में हाजिर होकर या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी हवाओं के झोंके नजर आ रहे मैदान बदर के अंदर, कि ऐसी हवाओं के झोंके कभी देखने को नहीं मिले। आपने फरमाया नहीं परेशान ना हो। पहला झोंका जो आया था वो इसराफील अलैहिस्सलाम आए थे, दूसरा झोंका आया तो मीकाईल अलैहिस्सलाम आए थे, तीसरा झोंका आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। वो मलाइका के पर जब गिरे मैदान बदर के अंदर, जो उनके परों के हवाओं के झोंके थे, वो जिब्राईल जो 6 लाख परों समेत मैदान बदर के अंदर आके खड़ा हो जाए और आके अपने परों पे हिला के रख दे, उसी के परों की हलाकत के साथ पूरे का पूरा कुफर हलाक हो जाता। अल्लाह चाहता तो सिर्फ एक फरिश्ता भेजता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा न किया। इस्तक़ूल लिल मुमिनीना अलयकुम अय्युमिदकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। फरमाया कि मुसलमानों डरो ना, घबराओ ना, मैं इसराफील अलैहिस्सलाम को भेज रहा हूं, 3000 फरिश्ते दे के भेज रहा हूं। मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज रहा हूं, 5000 फरिश्ते दे के भेज रहा हूं। मैं मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेज रहा हूं, 1000 फरिश्ते दे के भेज रहा हूं। 9000 फरिश्ते जिस बदर के मैदान में शामिल हो जाए, वहां शिकस्त का तसव्वुर ही नहीं करता। और रही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं परेशान ना हो, जिब्राईल मौजूद है, घोड़े पे सवार है, जिस्म पे ज़िरा है, हाथ में तलवार है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ मेरे मलाइका मैं जमीन पर अपना एक नाइब, एक इंसान बनाने लगा हूं। उन्होंने कहा कि या अल्लाह तो ऐसे बंदे को बनाने लगा है कि जिसके बाद लोग आएंगे और आपस में फसाद करेंगे, खूनरेजी करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और हम लोग नहनु नुसब्बिहु, हम लोग तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी हमद के साथ, और नहनु नुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकी को बयान करते हैं। हमारे ताकरे बंदों को क्यों पैदा कर रहा है? लेकिन उस वक्त मलाइका को भी पता लग गया कि मकसद खुदा की पाकी बयान करना नहीं है, मकसद खुदा की हमद बयान करना नहीं है, मकसद ये नहीं कि अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ी जाए। उस वक्त जिब्रील को भी समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने हमें मसरूफ ना रखने के लिए तस्बीह हाथ में पकड़ाई है। असल बात ये है कि अल्लाह ताला ने मलाइका को भी बनाया है तो मुस्तफा की गुलामी के लिए बनाया है। अगर सिर्फ तस्बीह के लिए मलाइका को पैदा किया होता तो अल्लाह ताला जिब्राइल के हाथ में तलवार दे के ना भेजते। जिब्रील के हाथ में अगर तलवार आई है तो मतलब ये है कि जब भी नबी की नमूज की बारी आ जाए तो फरिश्ते भी अपने हाथों से तस्बीह को छोड़ देते हैं। फरिश्ते हो के तस्बीह को छोड़ देते हैं और आके कत्ल गारत पे शुरू हो जाते हैं। वो हलाकत का सामान लोगों को बनाने लग जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों के अंदर भी गैरत रखी है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? वो मुआज और माऊद और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास गए और कहने लगे, मामू जान बताएं अबू जहल कहाँ है? कहने लगे कि बच्चों सब कुफार को छोड़ के अबू जहल के पीछे लग गई हो, वो अपने दस्ते के अंदर हिसार बांधे खड़ा है, तुम लोग नहीं पहुंच सकते, बाकियों को कत्ल करो, बाकियों को हलाक करो। कहा नहीं, अबू जहल को हलाक करना है। कि छोटे बच्चे हो, हिसार है उसके इर्द गिर्द, कैसे पहुंचोगे? वो देखो हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बच्चे भी पुकारे कि ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। जब दिखा दिया कि वो सामने दस्ता है, ये छोटे बच्चे घोड़ों के नीचे से जाके दाखिल हुए, जाके पहले अबू जहल के घोड़े की टांगों को काटा। वो घोड़ा जब गिरा तो अबू जहल ने गिरा तो उसे हलाक कर दिया। ये तो बच्चे हैं, कहा गए खुद मरेंगे और साथ मारेंगे हम नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को ना। ये उन बच्चों की गैरत थी जिन्होंने गवारा न किया कि माल एक ही मकसद है इस बदर के मैदान में आने का। हर एक ही जबान को बुद्धि से खींच के रखेंगे जो जबान मुस्तफा के खिलाफ बात करती है। ये मैदान बदर ये कोई आम मार्का नहीं है। ये मैदान बदर वो मार्का है कि अल्लाह ताला ने इस बदर के बाद इस्लाम को दुनिया शान अता फरमाई थी। इस्लाम की शानों को दुगना कर दिया गया था। और बदर के मार्के के अंदर 14 सहाबा शहीद हुए,
बाकी तमाम के तमाम को फतह हासिल हुई। जो शहीद हुए अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत मर्तबा अता किया, वो शहादत का जाम नोश करके जो बाकी रह गए वो गाजी बन गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को मुबारक हो, खुदा फरमा रहा है कि तुम लोगों की जिंदगियों को मैंने अपनी बारगाह में इस तरह कबूल कर लिया है, आज के बाद तुम लोग जैसा भी करते फिरो तुम लोगों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुम लोगों को बख्श दिया गया है, जो मर्जी करते फिरो। ये बात है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर एक सहाबी के पे इल्जाम लगाया गया कि इससे कोई फलां गुनाह हो गया है, इससे हद लगाई जाए। जब बारगाह में लाए गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सहाबी को लेकर इससे मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों ने कहा कि इंसाफ कीजिए, हद लगाइए, क्या कर रहे हैं? फरमाया कि इससे बड़ा इंसाफ क्या है कि इंसाफ की वजह से मैं रसूलुल्लाह के फरमान को टुकरा दूं। मेरे रसूल ने फरमाया था कि बदर के सहाबा जो भी करेंगे उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनके गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और ये वो गुनाह होते थे जो अनजाने में होते थे। अब बंदा के तेरी मेरी बात होती है, हंसी कहने की बात ठीक है, जन्नत अलाट हो गई है, अब पहले सूद छुप के खाते थे, सरेआम खाएंगे, शराब छुप के पीते थे, सरेआम पिएंगे, गुनाह हर तरह का छुप के करते थे, सरेआम करेंगे। तो सहाबा की जातें उन्होंने कहा कि जन्नती बना दिया है तो आज के बाद एक छोटा सा भी काम होगा तो जन्नतियों वाला होगा, जन्नती वाला नहीं होगा। उनकी गफलत होता ना कि बंदा गफलत में कर गया, वो गफलत को भी नजदीक ना आने देते थे। ये थे मुस्तफा के सहाबा, ये थे उनके पाक दामन और साफ दामन। इस तरह की उनकी बातें थी। कहा कि इन लोगों ने मेरे मुस्तफा के ऊपर अपनी जानों को निसार कर दिया है, मैं इनकी जानों का समर ये देता हूँ कि इन्हें जन्नती अदा कर सकता हूँ। मैदान बदर के अंदर जब 313 को जन्नत मिल गई तो आप बंदा कहते मिले कि अबू बकर के अमाल नामों को नापो, उमर के अमाल को नापो, या अमल ठीक था कि नहीं था, ठीक था, नियत ठीक थी कि नहीं थी, बाकी फजाइल दूर की बात है। जब अदना साहबी से मुराद जहाँ सिर्फ फजीलत का मर्तबा शुरू हो रहा है, जब वो साहबी मैदान बदर के अंदर जाए और जाके जिहाद करे और उसके बाद ये मकाम मिले कि उसे हिसाब ना लिया जाए और उसके गुनाह को भी गुनाह तस्वर ना किया जाए, तो बंदा क्या कर मिलेगा? अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह काफिर है या उमर काफिर है? क्यों तुझे रसूलुल्लाह के फरमान में शक है? अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का फैसला है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ताला मुस्तफा के सहाबा से राजी है और मुस्तफा के सहाबा अल्लाह ताला से राजी है। या बात खत्म, इख्तदैतुम, तुम किसी एक की बात पे अमल करोगे फलाह पा जाओगे, जन्नत में जाओगे, जन्नत हासिल होगी। किसी एक की भी तुम इक्तिदा करोगे। ये है मुस्तफा के सहाबा। जब बदर खत्म हो गया, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब्बास जो मुस्तफा के चचा थे, उनकी रस्सी को जरा कस के बांधा गया था, बाकियों के बांध, लेकिन उनकी आहें निकल रही थी दर्द की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ इनके साथ क्या करें? किसी ने कहा कि इन सबको हलाक कर दो, और उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, इस तरह हलाकत का मजा नहीं आएगा। जो बंदा जिसका रिश्तेदार है उस बंदे से कहो कि इसे हलाक करे और मेरे रिश्तेदारों को मेरे हवाले करो। किस तरह आपने इनकार किया? आपने फरमाया अबू बकर तुम बताओ तुम क्या कहते हो? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास नबूवत मुस्तफा, ये है वो बंदा। क्या या रसूलुल्लाह आपसे किस चीज़ की उम्मीद रखें? इन बंदों से फिदिया दें और इन्हें रवाना कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, फरमाया तुम्हारी बात ठीक है। जो बंदा फिदिया नहीं दे सकता वो बंदा, या मदीने के 10 वो लोग जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़ाए, ये उनका फिदिया है, उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। रात को रसूलुल्लाह सोए, आप कभी यहाँ कन्वर्ट लेते कभी यहाँ, तो निगरान साहबातों ने पूछा रसूलुल्लाह बात क्या है? फरमाया कि मेरे चचा है। कहा रसूलुल्लाह वो काफिर है, आगे तो लेगा वो तो काफिर है। तो मैं काफिर को है लेकिन है तो चचा। उन्होंने ये भी पूछा कि बताइए क्या करना है? साहबी गए जाके उनके हाथों को थोड़ा ढीला कर दिया। सरकार ने थोड़ी देर बाद पूछा कि चचा की आवाज़ें क्यों बंद हो गई हैं? अर्ज़ रसूलुल्लाह उनकी रस्सी को ढीला कर दिया गया है। फरमाया क्या सब कैदियों की रस्सी को ढीला किया गया है? अर्ज़ रसूलुल्लाह ने सिर्फ आपके चचा को। फरमाया नहीं, ये नहीं, सब कैदियों की रस्सी को ढीले कर दो, बाकी लोग भी तो रस्सी होंगे। ये है तेरा मेरा। हमारे लिए नहीं, कुफार के लिए भी ऐसा अखलाक ऐसा दर्द रखता है। और बारगाह नबूवत में जब अब्बास को लाया गया तो आपने फरमाया चचा फिदिया क्या लगे कि बच्चे तुझे पता ही है, जब से तुम मक्के से आया है बरकतें खत्म हो गई हैं, माल ही नहीं है। फरमाया चचा इस तरह की बात ना करो,
جو سونا اپنے گھر کے اندر دفن کر کے آئے ہو وہ سونا نکال کے لاؤ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ با خدا مجھے اس رب کی قسم ہے کہ اس سونے کے بارے میں یا میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے, اور میں کیا آیا تھا کہ اگر میں آ گیا تو ساری زندگی گزاریں گے, اگر نہ آ سکا تو یہ سونا بیچ بیچ کے اپنی زندگی کو گزارنا, یا میں جانتا تھا اس سونے کے بارے میں یا میری بیوی جانتی تھی, اگر تو جانتا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے. یہ تھا وہ بدر کا میدان. عباس جیسے عظیم غازی اور عظیم صحابی اسلام لے کے ہیں. ویسے تو فتح تھی, بدر کی ایک فتح یہ بھی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام کی غلامی کے اندر قبول فرمائے.